Good morning students, my name is Deepa Garg, your science subject teacher. Today we teach you chapter 12 electricity and circuit. विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी हमारी बिजली होती है जिसको हम विद्युत कहते हैं और सर्किट कहते हैं उसका परिपथ। We use electricity for many purposes to make our task easier. For example, we use electricity to operate pump that lift water from wells from ground level to the rooftop tank. What are other purposes for which you use electricity? List some of them in your notebook. तो हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत सारे कामों के लिए करते हैं, आसान बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने या जमीन की सतह से जल को छत पर रखी टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं, उनमें से कुछ को सूचीबद्ध कर अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हैं। Does your list include the use of electricity for lighting? Electricity makes it possible to light our homes, roads, offices, markets, and factories even after sunset. This helps us to continue working at night. The power station provides us with electricity. However, the supply of electricity may fall or it may not be available at some place. In such situations, the torch is sometimes used for providing light. A torch has a bulb that lights up when it is switched on. Where does the torch get electricity from? तो क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों में, सड़कों, रोड पर, ऑफिसेज में, फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। विद्युत हमारी और क्या मदद करती है? विद्युत हमारे बिजली घर से प्राप्त होती है। फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब होता है, जब इसका स्विच दबाते हैं तो यह प्रकाश देने लगता है। टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हमारा आएगा 12.1 इलेक्ट्रिसिटी सेल, यानी कि जो विद्युत हमारे सेल हैं उसके बारे में बात करेंगे। Electricity to the bulb in a torch is provided by the electric cell are also used in alarm clock, wristwatch, transistor, radiation cameras, and many other devices. Have you carefully looked at an electricity cell? You might have noticed that it has a small metal cap on one side and a metal disc on the other side. Did you notice a positive and a negative sign marked on the electricity cell? आपने ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा जब आप कोई भी टॉर्च का सेल लेते हैं तो उसमें एक साइड प्लस का निशान होता है और एक साइड उसमें माइनस का निशान होता है। तो टॉर्च के बल्ब को विद्युत जो मिलती है विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी में भी करते हैं, कलाई की घड़ी में भी करते हैं, रेडियो, कैमरा और अन्य बहुत सारी चीज़ों में सेल का यूज हम करते हैं। मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। द मेटल डिस्क is the negative terminal. All electric cells have two terminals, a positive terminal and a negative terminal. तो सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं जिनमें एक धनात्मक यानी कि प्लस और दूसरा माइनस होता है। An electric cell produces electricity from the chemicals stored inside it. When the chemicals in the electric cell are used up, the electric cell stops. तो विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। इसके लिए हमारे लिए जो इंडिकेशन हमें मिलते हैं, कॉशंस क्या है, वो हमारे चेतावनी, यानी कि यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन शॉन
Here displayed on poles, electric substations, and many other places, it is a warn people that electricity can be dangerous if not handled properly. Carelessness in handling electricity and electric device can cause service injuries and sometimes even death. Hence, you should never attempt to experiment with electric wires and sockets. Also remember that the electricity generated by portable generators is equally dangerous. Use only electric cell for all activities related टू इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए क्या चेतावनी आपको मिलती है? आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों और अन्य स्थानों पर इसका प्रकार का चिन्ह देखा होगा। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए, तो यह बहुत खतरनाक हो सकती है यदि विद्युत या बिजली युक्तियों को असावधानी पूर्वक यूज करेंगे तो गंभीर चोट या मृत्यु का कारण भी बन सकती है। इसलिए सभी को ध्यान रखना है कि विद्युत के तारों को, सॉकेट आदि को प्रयोग करने के वक्त अपने हाथों में ग्लव्स या पैरों में चप्पल पहननी बहुत जरूरी है। विद्युत संबंधी सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग किया जाना चाहिए। आप फिगर में देख सकते हैं, फिगर 12.2 में the electric cell then has repeated with a new one. A torch bulb has an outer case of glass that is fixed on a metallic base. What is inside the glass case of the bulb? Take a torch. तो देखिए आप इसमें क्या कर रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं फिलामेंट और टर्मिनेंट। अब फिलामेंट क्या है? आपने देखा होगा बल्ब के बीच में जो एक तार आपस में जुड़ा होता है वो हमारा फिलामेंट कहलाता है। तो उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है इसे हम देखेंगे एक्टिविटी 1 में। टेक अ टॉर्च एंड अ बल्ब, लुक इनसाइड इट्स बल्ब। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। व्हाट डू यू नोटिस? डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडिल ऑफ द ग्लास बल्ब? जैसा कि आप फिगर 12.2 में देख रहे हैं। नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज द ग्लोइंग। तो आप एक टॉर्च लीजिएगा तथा इसके बल्ब के भीतर देखिए। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। आप क्या देख सकते हैं? आप क्या कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं। अब टॉर्च का स्विच दबाइए तथा देखिए कि बल्ब का कौन सा भाग जल रहा है। The thin wire that gives of light is called the filament of the bulb. प्रकाशन देने के लिए पतले तार को बल्ब के तंतु कहते हैं, यानी कि फिलामेंट कहते हैं, जो जलता है। अब यह तंतु क्या होता है? The filament is fixed to two thicker wires which also provides support to it as showing the figure 12.2 में। जैसा कि 12.2 में देख रहे हैं आप, यह तंतु दो मोटे तारों के बीच होता है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। The other thick wire is connected to the metal up at the center of the base. The base of the bulb and the metal up of the base are the two terminals of the bulb. These two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other. The electric bulbs used at home also have a similar design. तो देखिए दूसरा मोटा तार जो आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा या धातु की नोक बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा इनको होता है। बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं। ये दो टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को न छुएं। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी ऐसी ही संरचना होती है। इस प्रकार विद्युत सेल और विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। इनमें ये दो टर्मिनल क्यों होते हैं? ये देखिए 12.2 पर आ जाइए आप। 12.2 में हमारा है अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। Let us try to make an electric bulb light up using an electric cell. How do we do that?
तो आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम किस प्रकार करते हैं? एक्टिविटी 2 हमारी होती है। क्रियाकलाप 2 पर आ जाइए। टेक 4 lightnings of electric wires with the different colored plastic covering. Remove a little of the plastic covering from each length of wire at the ends. This would expose the metal wire that at the end of the each length. Fix the exposed part of 2 wires of the cell and the other 2 of the bulb as shown figure 12.3 and 12.4 में, जैसे कि आपको दिखाया गया है। तो विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का जो आवरण होता है वो चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिएगा। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। इस प्रकार दोनों सिरों का जो धातु का तार अनावृत हो जाएगा। ये 2 तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे 2 बल्बों से चित्र 12.3 के 12.4 में आप दर्शाए अनुसार जोड़ दीजिएगा। तो आज के इस पीरियड में हम अपने चैप्टर को यहीं स्टॉप करते हैं। आई होप आप सभी वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे, बुक से रीड करेंगे। थैंक यू एवरीवन।